Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fit and fine at your home and doing your work properly. Yes, students, I Priyanka. Welcome to all in our English classes. Yes, students, today we are going to start our lesson number 5 from our English Reader Stepping Stone book. Okay, and the name of the lesson, do you know? What is the name of our lesson? Yes, Studying with Mangoes is the name of our lesson. Say students, this story Studying with Mangoes is written by R.K. Narayan. So firstly we should know about R.K. Narayan. Who was R.K. Narayan? Yes students, R.K. Narayan was born in 1906 in Madras which is in Chennai. Now, ओके उनका जन्म मद्रास में हुआ था 1906 में जो कि अब चेन्नई में है. Okay, and he was the finest Indian author of his generation who wrote in English. Okay, students, and the first novel is Swami and His Friends. Okay, yes, students, in this story, Studying with Mangoes, we will see about Swami. Okay, Swami and his father. Swami's father was an officer in district court. Okay. Yes, students, now we will see in this story, Swami's father gave a sum to Swami to solve it. So, we will see how Swami will solve this sum. Okay, he is able to solve this sum? Yes or not? If yes, then we will see how we'll solve it. Okay, so let's start this story from our book. So, everyone open your book. Hurry up. So let's start. Yes, students, today we are going to start our lesson number 5 and the name of the lesson is Studying with Mangoes. Okay, studying means padna with mangoes with the help of mangoes. Okay, firstly students, we will know about R.K. Narayan. Okay, who was R.K. Narayan? He was the author of this story. Okay, R.K. Narayan 1906 to 2001 was born in Madras, now Chennai. Yes, students, R.K. Narayan was born in 1906 and he was died in 2001. And he was born in Madras, now that is in Chennai. Okay, he was one of the finest Indian authors of his generation who wrote in English. He was one of the finest Indian author. वो Indian authors में सबसे अच्छे क्या थे? अच्छे ऑथर थे, लेखक थे ऑफ हिज जनरेशन, अपने जनरेशन में. हु रोट इन इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लिश में लिखे थी स्टोरीज. हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स 1935 recounts the adventures of a group of schoolboys, and the first novel of R.K. Narayan was Swami and his friend. That he was written in 1935, recounts the adventures of a group of schoolboys. In this story beta he described the adventure of a group of schoolboys को describe किया था. This book and many of Narayan's later work are set in fictitious South Indian town of मालगुड़ी. ये बुक और जो बहुत सारे नॉवेल्स थे जो उन्होंने लिखे थे बाद में, वो सभी किस में रखे गए हैं? साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी में. Okay, now let's start. What is the story of this lesson? Swami's father was an officer in the district court. Firstly, we will see this is picture of Swami and he is his father. Okay, let's see. Swami's father was an officer in the district court. District means जो जिला स्तर पे होती है. ओके, स्वामी जी के जो पिता थे वो जिला अधिकारी थे. जिला में जो न्यायालय कोर्ट है वहाँ पे क्या थे? ऑफिसर थे. एवरी ईयर, हर साल, द कोर्ट वॉज क्लोज फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ मे. जैसे बेटा आपकी जून में हॉलीडेज होती हैं, लाइक दिस मे मंथ में उनकी क्या हुई थी? हर साल उनकी जो कोर्ट थी 1 वीक के लिए बंद हो जाती थी, मीन्स क्लोज हो जाती थी. ओके, दिस ईयर, इस साल, इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा क्या थी? गर्मी थी. एंड फादर स्पेंट हिज आफ्टरनून्स एट होम. और जो पिता थे स्वामी जी के, वो अपनी जो आफ्टरनून्स दोपहर को कहाँ बिताते थे, स्पेंड करते थे? एट होम, घर पर ही. स्वामी फियर्ड मीन्स स्केयर्ड, मीन्स डरना. ओके, दैट ही माइट इंटरफेयर विद हिज आफ्टरनून रैम्बल्स. ओके, स्वामी जी को डर लग रहा था कि अब उसके पिताजी हैं वो इंटरफेयर करेंगे, बिकॉज एवरी आफ्टरनून ही वेंट आउटसाइड, बट नाउ हिज फादर विल माइट इंटरफेयर. ही थिंक दैट ऑन द थर्ड डे ऑफ वेकेशन. वेकेशन मीन्स क्या होता है? हॉलीडे. अब जो थर्ड डे था वेकेशन का, फादर आस्क्ड स्वामी, जो फादर थे स्वामी के, उन्होंने पूछा, जस्ट एज ही वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, वेयर ही वॉज गोइंग.
ओके अबाउट वेयर ही वॉज गोइंग, कि वो अब कहाँ जा रहे थे. वेयर वर यू एट दिस टाइम येस्टरडे. येस्टरडे मीन्स द प्रीवियस डे. ओके, तो उन्होंने पूछा वेयर वर यू एट दिस टाइम येस्टरडे, कि कल आप इस टाइम कहाँ थे. हेयर, तो स्वामी रिप्लाई करते हैं हेयर, यहीं पे था. यू आर लाइंग, सो फादर पूछते हैं यू आर लाइंग. लाइंग मीन्स झूठ बोलना, कि आप झूठ बोल रहे हो. यू वर नॉट हेयर येस्टरडे, कल आप यहाँ नहीं थे. ही टुक स्वामी टू लेटर्स रूम. लेटर्स रूम मीन्स उनकी जो पढ़ने का कक्ष था, रूम था, वहाँ उनको ले गए. टुक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक. फादर, शुड आई रीड इवन आई हैव नो स्कूल. तो स्वामी जी अपने पापा से पूछते हैं, फादर, पिताजी, मुझे अब भी पढ़ना चाहिए जबकि मेरे स्कूल नहीं चल रहे, क्योंकि स्कूल भी क्लोज थे. ओके, डू यू थिंक यू हैव पास्ड 5th ग्रेड. तो उनके पिताजी पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि आपने 5th ग्रेड पास आउट कर लिया है, कर चुके हो. द स्कूल इज़ क्लोज्ड, स्कूल बंद है, क्लोज्ड है. एंड देयर इज़ नो एग्जामिनेशन, और कोई एग्ज़ाम भी नहीं है. डू आई हैव टू स्टडी इवन नाउ, क्या मुझे अभी भी पढ़ना चाहिए, अभी भी पढ़ना है. यू मस्ट स्टडी. तो फादर उससे रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं कि आपको अभी भी पढ़ना चाहिए. फादर, यू सेड बिफोर द एग्ज़ाम दैट आई वॉन्ट हैव टू स्टडी आफ्टर दे आर ओवर. ओके, तो अपने पिता से बोलते हैं कि पापा जी, आपने मुझे बोला था, यू सेड बिफोर द एग्ज़ाम, पेपरों से पहले बोला था कि जब मेरे एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे उसके बाद मुझे स्टडी नहीं करनी है. Now he set him to dust his books and clean his table. ओके, जब वो अपने पिताजी से कहता है कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, क्या मुझे अभी पढ़ना चाहिए, तब उसके पिताजी उसको कहाँ लेके जाते हैं, रूम कक्ष में लेके जाते हैं. तो उसको वहाँ खड़ा करके बोलते हैं कि आपकी किताबों पे देखो कितनी धूल है. एंड क्लीन हिज टेबल, इसको क्लीन करो और अपने टेबल को भी क्लीन करो. स्वामी वाइगर्सली स्टार्टिंग ब्लोइंग ऑफ द डस्ट फ्रॉम हिज बुक कवर्स. ओके, वाइगर्सली मीन्स फुल एनर्जी, मीन्स गुस्से वाली जो एनर्जी होती है. स्वामी ने स्टार्टेड किया धूल हटाना अपने बुक्स के कवर से. गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, फादर सेड इम्पेशेंसली. जो पिताजी हैं वो गुस्से से कहते हैं कि जाओ एक क्या लेके आओ, पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का एक टुकड़ा लाओ. दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट, यह कोई तरीका नहीं है ऐसे काम करने का. ओके, स्वामी लुक्ड अबाउट एंड सेड आई कांट फाइंड एनीवेयर. स्वामी ने सब जगह देखा और आकर अपने पिताजी से कहता है कि आई कांट फाइंड एनीवेयर, कि मुझे कहीं भी कपड़ा नहीं मिला. फाइंड वन क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी. ओके, तो पिताजी कहते हैं कि जल्दी. स्वामी एट वंस हरीड आउट, स्वामी जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं. हरीड मीन्स जल्दी. ओके, ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर, और कहाँ जाते हैं, अपनी ग्रैंड मदर के पास. यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा. ओके, आफ्टर दैट ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर. ग्रैंड माँ, गेट मी अ पीस ऑफ क्लॉथ क्विकली. अपनी दादी से बोलते हैं, दादी जी, दादी माँ, मुझे प्लीज़ एक कपड़ा दे दीजिए जल्दी से. डोंट हैव इट चाइल्ड, सेड शी. तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास कोई भी कपड़ा नहीं है बच्चे. फादर शाउटेड फ्रॉम हिज रूम, ओ बॉय, हैवेंट यू फाउंड द क्लॉथ येट. तो जो पिताजी होते हैं वो रूम से शाउटिंग करते हैं, मीन्स चिल्ला के बोलते हैं कि बेटा आपको अभी तक कोई कपड़ा नहीं मिला. स्वामी आंसर्ड, आंसर्ड मीन्स रिप्लाई करना, उत्तर देना. तो स्वामी आंसर देते हैं, ग्रैंडमा हैजंट गॉट इट, आई शैल सी इफ मदर हैज़. ओके, तो वो कहते हैं कि मुझे ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी के पास नहीं मिला. अब मैं यदि जाके देखता हूँ अपनी मम्मा के पास, अगर मम्मा के पास मिलेगा तो कपड़ा. His mother was sitting in the back corridor on a mat with the baby sleeping in her lap. ओके, तो जो उसकी मदर होती है वो कहाँ बैठी होती है, इन द बैक कॉरिडोर, पीछे वाले कॉरिडोर में. ऑन अ मैट, मैट मीन्स चटाई, चटाई के ऊपर. विद द बेबी स्लीपिंग इन हर लैप, लैप क्या होता है बेटा, गोद. ओके, और उनकी गोद में कौन सो रहा होता है, एक बेबी स्लीपिंग कर रहा होता है. कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, आस्क्ड स्वामी. स्वामी क्या कहती हैं, क्या क्या आप मुझे कपड़ा दे सकते हो, कपड़े का टुकड़ा दे सकते हो. वट क्लॉथ, क्या कपड़ा. वट क्लॉथ, हाउ शुड आई नो. तो वो कहते हैं कि मुझे क्या पता कौन सा कपड़ा. फादर वॉन्ट्स मी टू डस्ट दोज बुक्स ऑफ माइंड. तो वो बताते हैं कि पिताजी चाहते हैं कि जो मेरी बुक्स हैं मैं उनकी डस्ट साफ कर दूँ. अ फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडेज. तो ये फाइन मीन्स अच्छा तरीका है क्या करने का, स्पेंडिंग हॉलीडेज, छुट्टियों को स्पेंड करने का, मीन्स बिताने का.
आई कांट गेट इट ना एनी नाउ, बट मुझे कोई भी कहीं भी नहीं मिला कपड़ा. आई कांट बट यू कैन टेल टेल्स अबाउट मी. ओके, तो वो कहता है कि यू कांट बट यू कैन टेल टेल्स अबाउट मी, कि अब आप मुझे नहीं कर सकते, तो बट अब मुझे टेल्स मीन्स कहानियाँ मत सुनाओ. वट अ नाइस मदर यू आर, आप कितनी अच्छी मदर हो. स्वामी लुक्ड अबाउट, देयर वॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द बेबी. तो स्वामी ने जब चारों तरफ देखा तो उसे क्या दिखा, देयर वॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द बेबी, कि क्या था, बेबी के नीचे एक कपड़े का टुकड़ा था. इन अ फ्लैश ही रोल्ड द बेबी ओवर, पुल्ड आउट द क्लॉथ एंड वॉज ऑफ. तो उसने क्या किया, बेबी जो सो रहा था उस कपड़े के ऊपर, तो उसने क्या किया, बेबी को रोल्ड आउट घुमा के जो कपड़ा था वो खींच लिया और ले गया वहाँ से. स्वामी हेल्ड हिज मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज ट्रबल्स. स्वामी जी सोचते थे कि इनकी जो भी ये प्रॉब्लम्स ट्रबल्स आई थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनके रिस्पॉन्सिबल किसको मानते थे, अपनी मम्मा को मानते थे. एंड नाउ डिस्टर्बिंग द बेबी इन दिस वे गेव हिम क्वाइट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ. इस तरह उन्होंने बच्चे को डिस्टर्बिंग करके इन द गेव ऑफ रिलीफ, अपने आप को रिलीफ किया. फादर मेड स्वामी रिमूव डस्ट फ्रॉम हिज बुक्स एंड नोटबुक्स. तो फादर ने क्या किया, उनको बोला कि अपनी डस्ट, कहाँ की, बुक्स और नोटबुक्स की डस्ट को रिमूव करो. देन ही मेड हिम सिट इन अ चेयर बाय हिज साइड. और फिर उन्होंने क्या किया, उसको अपने पास एक साइड पे चेयर पे बिठा लिया. स्वामी हैड अ नोटबुक एंड हिज हैंड एंड अ पेंसिल और रेडी. अब स्वामी के पास क्या था, एक नोटबुक भी थी उनके हाथ में और एक पेंसिल भी थी, और वो रेडी होके बैठे थे. फादर ओपन द अर्थमेटिक बुक एंड ही डिक्टेटेड. ओके, फादर ने क्या किया, अर्थमेटिक बुक ओपन की और उनको डिक्टेटेड मीन्स लिखवाना शुरू किया. डिक्टेटेड मीन्स बोलना. ओके, रामा हैज़ 12 मैंगोज, कि रामा के पास 12 मैंगोज हैं. ही वॉन्ट्स टू सेल दैम, वो उनको सेल मीन्स बेचना चाहता है. एंड अर्न 8 रुपीज़, और 8 रुपये इकट्ठा करना चाहता है. कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 3 मैंगोज, हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे. बट जो कृष्ण है उसको सिर्फ 3 आम्स चाहिए. वॉन्ट्स ओनली 3 मैंगोज, हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे. तो कृष्णा किस तरह पे करेगा, पैसे उसको देगा, कितने रुपए देगा, हाउ मच विल कृष्णा हैव टू तो पे. ओके, स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड एट द सम. गेज्ड मीन्स घूर के जो देखते हैं ना, टकटकी लगा के. स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड एट द सम, एवरी टाइम ही रेड इट ही सा डिफरेंट मीनिंग इन इट. स्वामी थे जो वो सम को बार बार टिकटिकी लगा के देख रहे थे, और एवरी टाइम, जितने टाइम भी ही रेड इट उन्होंने पढ़ा, ही सा डिफरेंट मीनिंग इन इट, उन्हें अलग ही मीनिंग इसमें दिखा. ही वंडर्ड, तो वो हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए. वाई रामा वॉन्टेड 8 रुपीज़ फॉर 12 मैंगोज, कि रामा को 12 मैंगोज के लिए 8 रुपीज़ ही क्यों चाहिए. वाई डज ही वॉन्ट सो मच मनी, ओके, उसे इतनी ही मनी क्यों चाहिए. स्वामी ट्राई टू पिक्चर इन हिज माइंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन रामा कुड बी. ओके, तो स्वामी ने क्या किया, उनकी माइंड में अपनी पिक्चर बनानी सेट कर दी कि रामा किस तरह का आदमी हो सकता है. ही मस्ट बी अ कनिंग फेलो ट्राइंग टू चीट कृष्णा. ही तो उसे लग रहा था कि जो रामा है वो कनिंग मीन्स चालाक भी हो सकता है, उसको चीट करने वाला भी हो सकता है, चीटिंग करने की कोशिश भी कर सकता है. ही थॉट, तो वे देखते हैं. Yes, students, you have to read this lesson till here. Tomorrow we will see Swami is able to solve this sum. Yes or not? If yes, then we will see how Swami will solve this question. Okay, students? Thank you. Have a nice day.